اے اہل زمین سب خداوند کی حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی میں اپنا مقدس دن بخش دیا تاکہ ہم اکٹھے ہو سکیں اور تیری عبادت کر سکیں۔ خداوند ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں، اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں چھو مسا کر معمور کر، اور خداوند اپنے پاک روح سے معمور ہو کر اس قابل بنا دے کہ ہم تیری حمد و ثنا لائق طور پر کر سکیں۔ آج کی اس عبادت کے وسیلے سے ہم یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جتنے آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، جتنے راستے میں ہیں، سبھی کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر۔ جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، خداوند ہمارا ایمان ہے تو ان کے ساتھ ہیں، تو چھو اور برکت دے، اور آج کی عبادت کے وسیلے سے ہم ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، ہم تیرے معجزات کو حاصل کریں، تیری برکت ہمیں ملے، تو فضل و رحم کر۔ اور خداوند آج جتنے لوگ کسی پریشانی دکھ تکلیف کے ساتھ تیری حضوری میں ہیں، آج اس عبادت کے وسیلے سے برکت پائیں، معجزات ملے، شفا ملے، اور آج جہاں بھی خداوند تیری عبادت کے لوگ جمع ہیں، خداوند تو نے بھی برکت دے اور ان کے ساتھ ہو۔ خداوند تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا اور چھو، اور کوائر کے بھی ساتھ ہو جو ہماری حمد و ثنا میں رہنما ہے، مددگار ہے۔ خداوند پاک روح کی معموری بخش دے، اپنی آگ سے ہم سب کو دھو اور پاک کر، اپنی پاک آگ سے ہمیں خداوند اس قابل بنا کہ ہم تیری حضوری میں بیٹھنے کے قابل ہو سکیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ بنا کر دے
मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है, और जब हम सब मिलकर अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही ईमान को बाइबल में बताए गए अकायद के मुताबिक मजबूत बनाते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कम वाली मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुक्म पर दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 145 गाएंगे। ज़बूर नंबर 145, दूजा हिस्सा, दूजा वजन। नहायत है रहीम खुदा। ज़बूर नंबर 145, ज़बूर नंबर 145, दूजा हिस्सा। के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर सलीम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने ये फजल किया कि हम इकट्ठे हो सकें, खुदावंद ने हमें महफूज रखा। इस जगह के लिए खुदा का शुक्र करेंगे,
کہ خدا نے یہ جگہ مہیا کی ہے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ بغیر کسی خوف کے، پریشانی کے، کرونا ایسوپیز کو فالو کرتے ہوئے عبادت کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور ہم اس جگہ کے لیے، ایف سی کالج کے لیے خدا کی برکت مانگیں گے، دعا کریں گے خدا اپنے فضل سے اس جگہ کو برکت دے، اس کالج کو چلانے والے انتظامی افسران، فیکلٹی اور سٹاف کو برکت دے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ ادارہ ترقی کر سکے۔ اسی طرح ہم پاکستان میں مسیحوں کے لیے دعا کریں گے، پوری دنیا کے مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کرے تاکہ وہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ وفاداری میں قائم رہیں، دکھوں میں بھی قائم اور مضبوط رہ سکیں۔ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک میں سے مسائل کو ختم کرے، امن اور سلامتی کو قائم کرے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ایلڈر سلیم اختر صاحب اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، بڑی عاجزی اور فروتنی خاکساری کے ساتھ آج دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک اور نیا دن وقت دیا۔ ہم ان بہت سارے لوگوں سے اچھے نہ تھے جو دن کو دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ نہ سکے۔ یہ تیری خاص مہربانی ہے، زندوں کی زمین پر رکھا ہے، حفاظت کی ہے، سلامتی کے ساتھ یہ فضل بخشا کہ خدا ہم ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک جماعت کی حیثیت سے مل کر خدا تیری عبادت کر سکیں، تیری پرستش کر سکیں۔ خدا جتنے تیرے لوگ آ چکے ہیں ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو بھی راستے میں باحفاظت پہنچے، جو تیاری میں مصروف ہیں، جلد آ تاکہ سب مل کر خدا خوشی کے ساتھ خدا تیری عبادت کر سکے، تیری پرستش کر سکے۔ خدا ہم اپنی کمزوریوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن یہ تیرے اکلوتے بیٹے کے فضل کے سواد سے جس نے ہمارا فدیہ دیا اور ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم تجھے باپ کہہ کر پکار سکتے اور اپنی کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم باتوں باتوں میں نافرمانی کرتے، تیرے حکموں کو بھول جاتے ہیں۔ تو وفادار خدا، ہمیں بھی وفادار بنا۔ خدا اگر تو بانی نو انسان کے گناہ کا صاف کرے، کوئی بشر کامل نہیں، تیری عدالت میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اپنی مہر کر، اپنا رحم کر، اپنا فضل کر، اپنا ترس کر۔ ہمارے ملک سے، تمام دنیا سے اس کرونا وائرس کی وبا کو ختم کر، اپنے پاک روح کی آگ سے جلا کر وطن کر، اپنا جلال ظاہر کر، اپنا معزز ظاہر کر۔ ہمارے ملک کو بحال کر، تمام دنیا کو بحال کر، تمام دنیا کی معاشی سرگرمیوں کو بحال کر، لوگوں کو روزگار ملے، لوگ خوشحال ہو، لائق طور پر تیری شکر گزاری کرے، تیری عبادت کرے، تیری پرستش کرے اور تیرے نام کو جلال دے گا۔ جو لوگ خدا اس وائرس کے سبب سے بیمار ہیں، خدا ان کے لیے منت کرتے ہیں، انہیں تندرستی سے دے تاکہ وہ تندرست صحت یاب ہو کر تیری شکر گزاری کرے اور تیرے نام کو جلال دینے کا سوال۔ خدا اپنے ملک کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہم بستے ہیں، خدا اس کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے خدا تجھ سے مل کر خدا دعا گو ہے کہ خدا تمہارے ملک میں امن و ایمان، سلامتی اور خوشحالی بخش۔ ملک کے حکمرانوں کو خدا عقل و دانائی دے جو ملکی مسائل پر قابو پانے کے لیے بڑا فضل دے۔ خدا اس ایسی کالج کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے لوگوں نے اس ادارے کو اس لیے قائم کیا کہ اس کے وسیلے سے خدا تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ خدا اس کی حفاظت کے لیے تیری شولتن تلوار کو مانگتے، تیرے پاک فرشتے اس کی حفاظت کرے۔ خدا اس کے انتظام چلانے والے اعلیٰ افسران کے لیے، تمام فیکلٹی کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، جونیئر سینئر اسٹاف کے لیے جو خدا اس کالج میں کام کرتے ہیں، خدا تو نے اپنی حکمت دانائی سے بھر، اپنی محبت سے بھر، اپنے خوف سے بھر، اپنے کلام سے بھر، تاکہ خدا وہ اپنے اپنے کام کو جی جان کے کرے کہ خدا تیرے لیے کرتے ہیں اور اس ادارے کی ترقی کے لیے اپنا عام رول ادا کرے۔ خدا اس ہال کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو انتظامیہ نے تیری کلیسیا کے لیے کھولا تاکہ تیری کلیسیا آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ خدا تیری عبادت کر سکے، تیری پرستش کر سکے۔ تیرے خادم کے لیے تیرے کے محنت کرتے ہیں، تو اپنی کلیسیا کی جو آج کی ضرورت ہے
اس کے مطابق خدا تو اپنے پاک روح کی معموری سے معمور کر، تاکہ خدا تیرے زندگی بخش کلام سے جو خدا تیری کلیسیا کی ضرورت ہے تیرے روح سے تیری روحانی خوراک کو سیر اور آسودہ کرے۔ اپنے پاک روح کی معموری سے معمور کر، اپنی کلیسیا کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ میں سننے والے نہ بلکہ اس کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھے اور اپنی زندگیوں سے خدا تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر کرنے کا سوا پر تمام مسیحی قوم کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے جو طرح طرح کے مسائل میں پریشان ہیں، جنگ و جدل میں، ذات ثانی میں، پستی میں، بے روزگاری کی حالت میں، خدا تو اپنی قوم کو سربلند کر، سرفراز کر، حکمت سے بات، دانائی سے بات۔ جس طرح تو نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو برکت دی ہے، سرفرازی دی ہے، سربلند کیا ہے، خدا وہی تیری برکت تمام مسیح قوم پر، مسیح لوگوں پر مانتے ہیں۔ عبادت میں شروع سے آخر تک تو اپنا پاک روح کثرت سے نازل کر۔ آج کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، کس تیرے کلام کی برکتوں سے مالا مال ہو کر ہے۔ ہماری دعا کو سن اور قبول کر، اپنے بچانے والے خدا یسوع مسیح کے جلالی قدوس نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 91 گائیں گے۔ زبور نمبر 91 پہلا حصہ، خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے۔ زبور نمبر 91 پہلا حصہ، زبور نمبر 91، خدا دے پردے ہیٹھاں جو انسان رہندا ہے۔ Thank you.
सरों को झुकाएं और एक बार फिर हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में महसूस करते हुए बड़े ईमान के साथ अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर मुत्फिक होते हैं और खुदा की हुजूरी में अपने दिल को खोलते और दुआएं खुदा के सामने रखते हैं तो वो अपने फजल से अपने लोगों को छूता है और बरकत देता है और मौजज़ात करता है। आए हम सभी अपने लिए और अपने अजीज़ों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए शिफाया दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे फजल के लिए शुक्र करते हैं जो तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में हम पर जाहिर किया है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसके नाम में कुदरत है, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम की कुदरत के लिए, क्योंकि उसकी कुदरत के वसीले से हम शिफा पाते हैं, हम फतह पाते हैं, हम मौजज़ात लेते हैं। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम मुत्फिक हो जाते हैं, एक दिल होकर तेरी हजूरी में आ गए हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू यहाँ पर मौजूद हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक बीमारी, जिस्मानी दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू छू, तो अपनी पाक आग से धोकर पाक कर दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से हमारे जिस्म धुल जाएं, हमारी हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक बीमारी, तकलीफ, बुखार को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, इस हर एक तकलीफ हमारे जिस्म से दूर हो जाए और हमारे जिस्म रहाई पाए। इसी तरह खुदावंद अपने घरानों की दुआ करते हैं, हमारे घरानों में से हर किस्म की रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। हमारी कलीसिया में से बहुत से लोगों ने दरखास्त किया कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं यूनुस साहब और उनके घराने के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दराब के लिए दुआ करते हैं, भाई आमिर फ्रांसिस के लिए दुआ करते हैं, मिसेस आशर के लिए दुआ करते हैं, भाई सनील असगर के लिए दुआ करते हैं, मिसेस परवीन अलियास के लिए, भाई जमील के लिए, मिसेस सरोया के लिए, नासिर साहब के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, शहजाद साहब के लिए, भाई रूबन के लिए, बेटी शेरल के लिए, और इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस सरवर के लिए, और खुदावंद हम भाई नदीम जॉर्ज के लिए भी दुआ करते हैं। तो अपने फजल से इन सबको छू और इन सब की जिंदगी में मौजज़ा कर। तेरे फजल के वसीले से ये सभी लोग शिफा पाएं। बहन फौजिया के लिए यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं, और भी जितने लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं यीशु के नाम से उन्हें शिफा मिल जाए। खुदावंद हम कोरोना पेशेंट्स के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पाएं। खुदावंद इस तरह डेंगू के मर्ज के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम से ये मर्ज खत्म हो जाए, यीशु के नाम से कोरोना खत्म हो जाए। खुदावंद तू पूरी दुनिया को बहाल कर, हमारे मुल्क को खुदावंद तू बहाल कर, मुआशी सरगर्मियां बहाल हो, लोग शिफा पाएं, तेरी कुदरत का तजुर्बा करें। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए भी तेरे बेटे यीशु के नाम से बरकत मांगते हैं। तू छू खुदावंद, तू बरकत दे, तेरी मेरास में मिले, तेरी कुदरत का तजुर्बा तेरे लोग कर सकें और औलाद की नेमत मिल सके। खुदावंद तू रहम और फजल कर, तू बरकत दे। खुदावंद मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चल एक जरूरी अनाथ हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ SOPs को, कोरोना SOPs को फॉलो करने में हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसी तरह इन SOPs को हमारे साथ मिलकर तामल करते हुए फॉलो करते रहें। हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं कि हम सभी महफूज हैं। ये SOPs आप लोगों की सेफ्टी के लिए हैं, इसलिए ज़रूर इनको फॉलो करते रहें और जो अशर साहब को बताते हैं उनके मुताबिक ज़रूर अमल करते रहें। और ख़ास तौर पर आप लोगों से अक्सर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरफ ज़्यादा आकर बैठा करें, क्योंकि सफोकेशन हो जाती है, हमारा एक यूनिट जो है वो दुरुस्त काम नहीं करता। तो इस तरफ ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप आकर बैठें, ताकि ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठे होने से सफोकेशन ना हो। शादी की एक पुकार है, अजहर इकबाल मसीह, उम्र 26 साल, हालत कमवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। कोमल जॉर्ज, डॉक्टर जॉर्ज मसीह, उम्र 23 साल, हालत कमवारी, कराची के रहने वाले के साथ।
23 अक्टूबर 2021 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो वो कभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम क्वायर से एक गीत सुनेंगे और आप लोगों से दरखास्त है कि जब क्वायर गीत गाती है तो ये सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से अगर वो गीत मौजूद हो तो ज़रूर साथ मिलकर गाया करें ताकि यही गीत हमारी कलीसियाई हमदो सना का हिस्सा बन सकें और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर इनको गा सकें। आज का जो गीत हमने मुंतखब किया है, जैसे कि पादी साहब ने बताया कि ये गीत नहीं, ये ज़बूर 106 है, ज़बूर नंबर 106। इसकी हम पहली गाएंगे एक्चुअली 5 आयात। तो आप लोग ज़बूर 106 हमारे साथ खोल लें और हमारे साथ ज़रूर इस हमदा सना में शरीक हो सकते हैं। ज़बूर नंबर 106।
एक और अनाउंसमेंट है और उससे पहले एक दरख्वास्त भी आपसे करना चाहता हूँ कि जब हमारी इबादत ख़त्म होती है तो हम आखिरी गीत से पहले ही उठ के बाहर चले जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जब क्वायर आखिरी गीत गाती है तो उसमें आप कोशिश करें कि चर्च के अंदर मौजूद हों और खुदावंद की हमदो सना करके फिर बाहर निकलें। जब गीत शुरू होता है तो आप लोगों की वजह से फिर मुझे भी जल्दी जाना पड़ता है, तो आप लोग कोशिश करें कि गीत जब हो रहा हो, आखिरी गीत शुरू हो तो यहाँ पर मौजूद हो और खड़े रहें। एकदम फिर जल्दी से हम बाहर निकलते हैं तो SOPs फॉलो नहीं हो पाते। जब थोड़ा सा गीत गुजर जाता है तो हमारी पहले चर्च में यही ट्रेडिशन रही है कि जब गीत से एक दो मिसरे गुजर जाते हैं तो फिर मैं बाहर जाता हूँ, तो फिर उसके बाद लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फ़ौरन ही निकलते हैं, जैसे ही मैं बरकत के कलमात देता हूँ तो उसके बाद फ़ौरन लोग निकलना शुरू करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आखिरी गीत में शामिल हों और आखिरी गीत के से आधा गुजर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू करें ताकि हम खुदावंद की हम को मुकम्मल तौर पर उसकी इबादत को मुकम्मल तौर पर कर सकें। आज एक और खुशी की खबर ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग डॉक्टर बाबर यूसुफ साहब के नाम से वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर डैनियल साहब से भी आप वाकिफ़ हैं, उनके छोटे भाई हैं एल्डर डैनियल साहब के, डॉक्टर डैनियल साहब के छोटे भाई डॉक्टर बाबर साहब। हम में से बहुत से लोगों के मददगार भी वो रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर होने की हैसियत से बहुत से लोगों के मददगार होते हैं। मेरे बड़े मददगार होते हैं, मैं अक्सर चर्च मेंबर्स के हवाले से उन्हें फ़ोन करता हूँ तो मददगार होते हैं। लेकिन एक और ज़िंदगी में खुदा ने बरकत दी है। मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर बाबर साहब से, डॉक्टर बाबर साहब आप और आयरा और डॉक्टर साहब आप भी दोनों प्लीज़ आए सामने। डॉक्टर बाबर साहब सबसे पहले MBBS डॉक्टर बने और गंगाराम हॉस्पिटल में MO के तौर पर, मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट हुए। फिर उसके बाद FCPS करने के बाद दोबारा से एग्ज़ाम देकर सीनियर रजिस्ट्रार अपॉइंट हो गए गंगाराम में ही। लेकिन अभी एक और कामयाबी खुदावंद ने दी कि उन्होंने मुकाबले के इम्तहान को पास करके असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो हमने सोचा कि उनको हम बुलाते हैं। ये हमारे चर्च में से 4 लोग हैं इस वक्त जो मुकाबले के इम्तहान को पास कर चुके हैं और डॉक्टर साहब प्लीज़ आएँ। और सबसे पहले जो और उनका आज़ाज़ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में से पहली मसीही खातून के तौर पर भी मुकाबले का इम्तहान पास किया। मैं उन्हें बुलाने लगूँ। बहन फौजिया आप प्लीज़ आएँ। बहन फौजिया सलमान ने पाकिस्तान में पहली मसीही खातून जो हैं उसके तौर पर उन्होंने मुकाबले का इम्तहान पास किया
اور ان کی چھوٹی بہن نے پھر باجی علیلہ نے بھی مقابلے کا امتحان پاس کیا، وہ بھی بہت عزت سرفرازی کے ساتھ پاکستان میں خدمت کر رہی ہیں، آج کل ڈنمارک میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک اور بچے نے نعیم جان نے بھی مقابلے کا تحریری امتحان پاس کر لی، اور نعیم جان صاحب کے بیٹے نے، ہاں جی رومیل جان نے پاس کیا۔ ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ جو محنت کرتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے اور اسے کامیابی دیتا ہے اور اسے سرفرازی دیتا ہے۔ اور آپ لوگ جب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ کمیونٹی کے لیے ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں ہمارے بڑے مددگار رہے ہیں، اور بلکہ جب انہوں نے پاس کر لیا امتحان تو اس کے بعد ہی مجھے وہاں پر ایک اور کرسچن آفیسر کے پاس لے کر گئے۔ میں نے کہا میں نے تو ادھر اب اگر نہیں رہنا تو آپ کی واقفیت یہاں پہ اور میں کروا دوں تاکہ آپ کے کام ہوتے رہیں یہاں سے ہاسپٹل سے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بابر صاحب، گاڈ بلیس یو۔ ابھی بہن فوزیہ جو ہے وہ بکے دیں گی ڈاکٹر بابر صاحب کو۔ ڈاکٹر بابر صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پڑھاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو بہت اور آپ کے سارے خاندان کو بہت مبارک ہو۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے میرا خیال ہے مٹھائی بھی ڈاکٹر صاحب لائیں۔ ہاں جی، عبادت کے بعد آپ لوگوں کے لیے مٹھائی بھی ہیں۔ ڈینیل صاحب آپ کے سارے گھرانے کو، آپ کے والد صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو کلیسیا کی طرف سے، گاڈ بلیس یو۔ خدا نے ان کے سارے خاندان کو بڑی برکت دی ہے، اور اب ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ قرآن عہد نامے میں سے زبور نمبر 112، سام 112، قرآن عہد نامے میں سے زبور نمبر 112، اور اس کی تلاوت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے۔ زبور نمبر 112 اور اس کی تلاوت کرنے میں ہمارا رہنمائی وکرم کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے آج کی تلاوت زبور 112 اور اس کی پہلی آیت سے آخری آیت تک، اور بائبل مقدس کے اس حصے میں کچھ یوں لکھا ہے: خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، اور وہ رحم و کرم اور صادق ہے۔ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے، وہ اپنا کاروبار راستے سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے اور وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑے گا، اور وہ دانت پیسے گا اور کھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ کلام کے اس حصے کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کی باقی اس وقت ہم دعائیہ روح میں گیت گائیں گے، گیت نمبر 338، گیت نمبر 338، روح آ۔ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے خدا کے پاک روح کی مدد مانگیں گے کہ خدا کا پاک روح ہمارے دلوں کو تیار کرے اور آج کا کلام ہم میں سے ہر ایک کے لیے برکت کا باعث ہو۔ گیت نمبر 338، گیت نمبر 338۔
लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरे पाक रूह के लिए शुक्र करते हैं जो हमारी रहनुमाई करता और हमारा मददगार है। खुदावंद, इस वक्त पाक रूह की मामूरी हम अपने लिए मांगते हैं। हमें से हर एक को तू छू दे, हमें कलाम के सुनने के लिए तैयार कर। खुदावंद तू मदद कर, रहनुमाई कर। खुदावंद तू मुझे भी अपने पाक रूह की रहनुमाई में इस्तेमाल कर। तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुंचे। हम अपनी कमजोरी का इकरार करते हैं, हम अपनी कामिलमी का इकरार करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू फजल करता है। खुदावंद तू हर एक को छू और बरकत दे। मेरे साथ हो, मेरी रहनुमाई कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। गुज़श्ता 2 अतवारों से और आज भी हम शुक्रगुजारी के और खुदा की तारीफ के जो मज़ामीर हैं उनका मुताला कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता अतवार 100 ज़बूर में से सीखा जो खुदा की शुक्रगुजारी के बारे में है। फिर उससे पहले ज़बूर 126 को देखा जिसमें खुदा के बड़े बड़े काम जो ईमानदारों की ज़िंदगी में होते हैं उसके बारे में सीखा। और आज का जो ज़बूर है, ज़बूर 112, वो भी खुदा की तारीफ का ज़बूर है, उसकी शुक्रगुजारी का ज़बूर है। और ज़बूर 112 का पहले वाला ज़बूर, ज़बूर 111 और ज़बूर 113, ये तीनों मज़ामीर जो हैं उनका आगाज जो है वो एक ही तरह के अल्फाज से होता है, खुदावंद की हम्द करो। फिर 112वें ज़बूर में लिखा है खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 113 में लिखा है खुदावंद की हम्द करो। उसके आखिरी आयत में फिर लिखा है खुदावंद की हम्द करो। ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है हालेल, जिसको हम उर्दू में हालेलुया बोलते हैं। यानी ये तीनों मज़ामीर हालेलुया के लफ्ज़ से शुरू होते हैं। हालेल इसको इब्रानी ज़ुबान में बोलते हैं। जो लफ्ज़ आप हालेलुया बोलते हैं उसका मतलब ये है खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हम्द हो। और ये तीनों मज़ामीर जो हैं, ज़बूर 111, ज़बूर 112 और ज़बूर 113, तीनों खुदावंद की हम्द के बारे में बताते हैं। ज़बूर 111 जो है उसको अगर हम देखें तो उसके मजमून में भी खुदावंद की तारीफ है, लेकिन वो तारीफ खुदा के कामों के लिए है। इसमें खुदा के कामों को कहा गया कि वो बड़े जलाली और पुरहशमत हैं, खुदावंद रहीम और करीम है। फिर उसके फिदिये के बारे में बात की गई कि उसने अपने लोगों के साथ अहद किया है, उसने अपने लोगों के लिए फिदिया ठहराया है। ज़बूर 112 जो है वो खुदा के लोगों के लिए खुदा की तारीफ है, खुदा के लोगों के कामों के लिए खुदा की तारीफ बयान की गई है कि जो उसके लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, खुदा की मर्जी से चलते हैं, उनके लिए भी खुदा की तारीफ की गई है। ये तीनों ज़बूरों के ऑथर का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं है, ऑथर का नाम यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मुसन्नफ का हमें मालूम नहीं होता कि ये कौन है। लेकिन तीनों ज़बूरों के अल्फाज, उनके जो मजमून हैं वो ये बताते हैं कि तीनों ज़बूर एक ही राइटर ने लिखे। और एक और ख्याल ये किया जाता है कि ज़बूर 112 जो है वो दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को नसीहत के तौर पर लिखा। लेकिन ज़बूर 112 न सिर्फ मुकद्दस दाऊद के अपने बेटे के लिए नसीहत के तौर पर हो सकता है, ये ज़बूर हर एक ईमानदार के लिए एक नसीहत है, क्योंकि इसमें खुदा की तारीफ को खुदा के लोगों के कामों के साथ जोड़ा गया है। जो इस दुनिया में खुदा के लोग हैं वो खुदा की फरमाबरदारी करते हुए अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को, अपने कंडक्ट को, अपने कामों को खुदा की मर्जी के मुताबिक और उसके हुक्मों के मुताबिक चलाते हैं, तो वो खुदा की तारीफ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में कहा, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। यानी खुदा के लोगों के अच्छे काम, खुदा के लोगों की खुदा की फरमाबरदारी, खुदा के लोगों की तारीफ नहीं बल्कि खुदा की तारीफ के लिए हमें तैयार करती है। बहुत से लोग जब अच्छे काम करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। लेकिन यीशु ने कहा कि लोग तुम्हारे अच्छे और नेक कामों को देखकर खुदा की तमजीद करें। खुदा की मर्जी ये है,
ये ज़बूर भी, ज़बूर 112 भी बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि खुदा के लोगों के कामों से खुदा की तारीफ होती है। कितने बाबरकत लोग हैं जो अच्छे काम करें, खुदा की मर्जी को पूरा करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें और उनके वसीले से खुदा की तारीफ हो। ये एक प्रिविलेज है, ये एक इस्तेहकाक है, ये एक बरकत है कि खुदा के लोग अच्छे काम करें और तारीफ खुदा की हो जाए। हम खुदा की तारीफ में एक टूल बन जाएं कि हमारे वसीले से लोग खुदा की तमजीद करें। ये एक बड़ा प्रिविलेज है अगर हम बतौर ईमानदार ऐसा कंडक्ट, ऐसा कैरेक्टर अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं जिससे लोगों को बरकत मिले, लोग तारीफ करें, तो असल में वो हमारी नहीं खुदा की तारीफ है। और ये हमारे लिए प्रिविलेज है, ये हमारी बरकत है। और इस ज़बूर में भी इसी तरह से बयान किया गया है, खुदावन की हम्द करो, हालेलुया, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से करता है। आगे शुरू में खुदावन की तारीफ हो और नीचे इंसानों के काम लिख दिए गए। तो इससे ये पता चलता है कि इंसानों के काम भी खुदा की तारीफ का बायस बनते हैं। और इसमें हमें 3 मुख्तलिफ ऐसी जिंदगी में हमें काम नजर आते हैं जिससे खुदा की तारीफ हो सकती। इस ज़बूर में खुदा के वादों को बयान किया गया है जो उसके अपने लोगों के साथ हैं। पुराना अहदनामा ऐसे वादों से भरा पड़ा है कि खुदा ने अपने लोगों के साथ बरकत के वादे किए। अब्राहम के साथ कॉवेनेंट है, अहद है बरकत का। याकूब के साथ है, खुदा ने अपने लोगों के साथ अहद बांधता रहा। मूसा के साथ है, दाऊद के साथ है। खुदा ने बार बार अपने लोगों के साथ अहद बांधा बरकत का। और खास तौर पर अगर हम ज़बूर 20 और गिनती की किताब में से हम 2 जगह पर देखेंगे। पहले ज़बूर 20, माफ कीजिएगा, खरूज की किताब का 20वां बाब, उसमें खुदा ने बरकत को एक खास काम के साथ कंडीशनल कर दिया, जोड़ दिया। खरूज की किताब और उसका 20वां बाब, आपको याद है खरूज की किताब के 20वें बाब में क्या है? 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्म। खरूज की किताब के 20वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, 5वीं आयत में लिखा, तू उनके आगे सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। यहां पर खुदा ने हुक्मों की फरमाबरदारी के साथ बरकत को जोड़ा है, और खुदा के हुक्मों के साथ खुदा ने अपने लोगों की बरकत को जोड़ दिया ताकि, और इसी तरह इस्तिस्ना की किताब में भी जब खुदा ने शरीयत का इख्तिताम किया जो खुदा अपने लोगों को दे रहा था, तो उसमें भी हमें इस्तिस्ना की किताब के इख्तिताम में वो वादे नजर आते हैं जो खुदा ने अपने लोगों के साथ किए। 30वां बाब इस्तिस्ना की किताब, इसमें खुदा ने कहा कि और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों को जो मैं आज तुझको देता हूं अमल करेगा, और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चुपायों के बच्चों और जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा जैसे तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्ते के तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके एहकाम और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुंह फेरे। यहां पर इस्तिस्ना की किताब में जब शरीयत का इख्तिताम हुआ देने का, और खरूज की किताब में जब 10 एहकाम से खुदा के हुक्मों के देने का आगाज हुआ, दोनों जगह पर खुदा ने बरकत को हुक्मों की फरमाबरदारी के साथ जोड़ दिया। और इस ज़बूर का आगाज भी कहता है, मुबारक है वो आदमी, यानी बरकत है उस आदमी के पास जो खुदावंद से डरता है, उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। यानी पहली खूबी क्या है? जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। आगे वादा क्या है?
उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, मालो दौलत उसके घर में है, उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। ये पहला हिस्सा है ज़बूर का। और पहले एक काम के साथ बरकत का वादा है, किस शख्स के साथ? जो उसके हुक्मों पर चलता है। लेकिन इस ज़बूर का आगाज कुछ और बता रहा है। ज़बूर का आगाज कहता है खुदावंद की हम्द करो, उसके बाद लिखा है जो उसके हुक्मों पर अमल करता है और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। पुराने अहदनामे में बरकतों का वादा फरमाबरदारी के साथ है, लेकिन खुदा ने बार बार इंसान की इस हालत को भी बयान किया है कि इंसान अपनी कोशिश से खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर सकता। खुदा की तारीफ इस ज़बूर में इसलिए बयान की गई है कि खुदा ही लोगों को बरकत देता है, फजल देता है कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल कर सके। ये इंसानी बस की बात नहीं है, ये इंसानी कंट्रोल की बात नहीं है। इंसान अपनी कोशिश से खुदा के हुक्मों को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सकता। इंसानी कमजोरी के बारे में कहा गया, ज़बूर 103 में लिखा है वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है, वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, क्योंकि जानता है वो सारी आप गुनाहगार सारी कि वो हमारी खामियों से, कमजोरियों से वाकिफ है। इसलिए ये उसका फजल है कि उसके लोग उसके फरमाबरदारी में उसके हुक्मों को मानते हैं और उसके हुक्मों में खुश रहते हैं। हुक्मों को मानने में मजबूरी के साथ मानना और खुशी के साथ मसरूर होकर मानना, ये दोनों में फर्क है। मसरूर होना, डिलाइट होना, खुश होना, और हुक्मों को मानने में बाज़ औक़ात परेशानी भी होती है। मानना मजबूरी है जी, मानना पड़ता है, हेलमेट पहनना पड़ता है, चलान हो जाता है, मास्क लगाना पड़ता है क्योंकि वो एंट्री नहीं है कहीं पे, वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है क्योंकि काम है, मजबूरी है। हम फोर्स होकर हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा के हुक्मों को मानने के लिए मसरूर होने की बात की गई, खुशी के साथ मानना, खुशी के साथ खुदा की तालीम पर अमल करना। और यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब अशायर बानी के बारे में तालीम दी, तो जो हम हर दफा जब अशायर बानी होती है, आज भी होगी, तो मैं उसी में से आयात आपके सामने दोहराता हूं। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अशायर बानी के बारे में तालीम दी, तो बहुत से लोग उसको सुन रहे थे, उसके शागिर्द बहुत ज्यादा थे। 6 बाब और 60वीं आयत में लिखा है, उसके शागिर्दों में से बहुतों ने कहा कि ये कलाम नागवार है, इट इज हार्ड टीचिंग। इन्होंने कहा है कि बड़ा सख्त कलाम है और इसे कौन सुन सकता है, वो छोड़कर चले गए। बड़ी दफा बाइबल की तालीम को, खुदा के हुक्मों को हम अपने लिए हार्ड समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, और मुश्किल समझते हुए फिर हम आहिस्ता आहिस्ता खुदा के हुक्मों से दूर हो जाते हैं। यहां पर जब लोग चले गए तो यीशु ने अपने शागिर्दों से जो रह गए तो उन्हें कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? लिखा है 66वीं आयत में, उसके बाद वो तेरे शागिर्द जो थे वो उल्टे फिर गए, छोड़ गए। यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन ने जवाब दिया, है खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। यहां पर 12 शागिर्दों ने कहा कि हम कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। ये कलाम बहुत से लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन शागिर्दों के लिए ये जिंदगी की बातें थी। खुदा के लोगों के लिए जो उससे बरकत लेना चाहते हैं, जो उसके साथ वफादार रहना चाहते हैं, उनके लिए ये जिंदगी की बातें हैं, उनके लिए ये बरकत की बातें हैं, उनके लिए ये खुदा से वफादारी की बातें हैं। लेकिन बहुत से लोग जो यीशु की बातों को सुनकर चले गए, उन्होंने कहा ये काफी, ये मुश्किल है, ये नागवार है, इसको कौन सुनेगा? मायूस हो गए। वो शागिर्द थे ना, वो चाहते थे कि यीशु के साथ मिलकर खिदमत करें, लेकिन उन्होंने कहा जे असी ए कलाम जाके सुनाया तो एक ही ने सुनना है,
ये तो बड़ा मुश्किल, इन पर कोई अमल नहीं करेगा। हालांकि शरीयत जो है वो इनके लिए इससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन जब उन्होंने यीशु की बातें सुनी तो उन्होंने कहा नहीं ये मुश्किल है, चले गए। शमौन ने कहा कि हम किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। और उन्होंने हमेशा की जिंदगी को कबूल किया, उसको चुना। मेरे अजीजों, ईमानदार को खुदा की तरफ से इस जिंदगी की बातों को चुनने की जरूरत है। जो खुशी के साथ जिंदगी की बातों को चुनता है उसे खुदा बरकत देता है। जिक्र है कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। उसके बाद 25वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। इंसान यही फिक्र करता है ना अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए, कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हमारे बच्चों के लिए क्या हो। ज़बूर 112 में फरमाबरदारी की बरकत का जिक्र है कि उसकी औलाद जो है वो बरकत वाली होगी, बाबरकत होगी, मुबारक होगी। यहां पर जिक्र है कि अपनी जान की फिक्र करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उसके बाद 28वीं आयत में लिखा है, पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो। इसी तरह 31वीं आयत में लिखा है, फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। आगे बड़ा खूबसूरत जुमला है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। यीशु ने किस बरकत की तरफ पहले इशारा किया है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की तरफ, रूहानी बरकत की तरफ। और दुनियावी बरकत को यीशु ने नजरअंदाज नहीं किया, इग्नोर नहीं किया कि लोगों को जरूरत है इसकी और लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। लोगों को इसकी जरूरत है, लेकिन वो तवक्कुल या भरोसे की बात कर रहा है। प्रायोरिटीज क्या है, तरजीह क्या है। पुराने अहदनामे में लोगों की तरजीह ब्लेसिंग है और वो हुक्मों पर अमल करने से है, और वो दुनियावी ब्लेसिंग्स की तरफ इशारा है। नए अहदनामे में यीशु पुराने अहदनामे की दुनियावी बरकतों को जोड़ता है रूहानी बरकतों के साथ, और रूहानी बरकतों को पहली तरजीह देने की तालीम देता है कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। और खुदा की बादशाही और रास्तबाजी क्या है, खुदावंद यीशु मसीह। खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही यीशु मसीह में पूरी होती है, और जो पहले यीशु को तलाश करता है उसे खुदा ये दुनियावी चीजें भी दे देता है। लेकिन तरजीह क्या है, ये बड़ा अहम है कि हमारी जिंदगी में हमारी प्रायोरिटीज क्या है। तरजीह रूहानी बरकत होनी चाहिए, यीशु की तलाश होनी चाहिए, यीशु की बातों को अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत है, और फिर खुदावंद हमारे लिए दुनियावी चीजों को भी मुमकिन कर देता है। आज हमने एक बड़ी गवाही है ये, अभी हमने डॉक्टर बाबर साहब को बुलाया, उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। उनके भाई एल्डर डैनियल साहब डॉक्टर हैं, चारों भाई गवर्नमेंट में अच्छे ग्रेड्स में, 18वें ग्रेड में 17 स्केल में खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक गवाही है, इनके वालिद की खिदमत है, जो खुदा की खिदमत के तौर पर उन्होंने अपने आप को दिया, उसकी बरकत उसके बच्चों में नजर आती है। यहां पर 112वां ज़बूर जो है उसमें रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, मालो दौलत उसके घर में होगी, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। रास्तबाज इंसान खुद नहीं बन सकता, रास्तबाज यीशु के वसीले से बनता है। जब यीशु की रास्तबाजी को हम ले लेते हैं, जो कि यीशु ने कहा कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, यानी जब हम यीशु की रास्तबाजी को ले लेते हैं तो हम और हमारा घराना बरकत पाता है। और ये एक बड़ी गवाही हमारे सामने, आप में से बहुत किस्सों की जिंदगियों में ऐसी गवाहियां हैं कि जब हम अपने जिंदगी में रास्तबाजी यीशु की ले लेते हैं, ध्यानदारी के साथ काम करते हैं, खुदा हमारे खानदान को और औलाद को बरकत देता है। जिंदगी में ध्यानदारी बड़ी जरूरी है, खुदा के हुक्मों पर अमल करना बड़ा जरूरी है। हमारा कंडक्ट जो है वो खुदा की तालीम पर, यीशु की तालीम पर, यीशु की वफादारी और उसकी तलाश में
सर्फ होना चाहिए, उसकी खिदमत में और उसकी बादशाही की मुनादी में जब सर्फ होता है तो खुदा औलाद को और ख़ानदान को बरकत देता है। उसके बाद दूसरा कंडक्ट है, वो रहम दिल और कर्ज देने वाला सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, सादक की यादगार हमेशा रहेगी, उसे कभी जुम्बश ना होगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। ये दूसरा कंडक्ट है, रहम दिल होना, मर्सीफुल होना। पहाड़ी बाज की जो मुबारकबादी हैं वो आपको जरूर याद होगी। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उस पर रहम किया जाएगा। We all need mercy। हम में से हर एक को खुदा के रहम की जरूरत है और उसको हम चाहते भी, मांगते भी हैं। हमें से हर एक दुआ करता है, खुदावंद रहम कर, खुदावंद रहम कर, मेरी ये दुआ सुन ले, मेरा ये काम कर दे, मेरी ये कामयाबी मुझे दे दे, मुझे ये चीज मिल जाए। बार बार खुदा से रहम की दरखास्त करते हैं। हकीकत हम में से हर एक खुदा के रहम का जरूरतमंद है, लेकिन हमारी जिंदगी में कितना रहम है ये बड़ा जरूरी है। वो जो रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी है वो सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। He will not be shaken। दुनिया में इंसानों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, परेशानियां और फिक्रें हैं, उनके लिए हम तवज्जो करते हैं। स्ट्रगल हमारी यही है ना कि हमारी मुश्किलें जो हैं वो खत्म हो जाएं, लेकिन उनके बहुत अहम जिम्मेदारियां उनको हम मिस कर जाते हैं। हम मांगने की तरफ, लेने की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं। खुदा से लेना हमारे लिए बड़ा जरूरी है और खुदा से लेने के लिए हम हमेशा तैयार भी रहते हैं। खुदा के रहम के हम हमेशा तलबगार रहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी जिंदगी में कितने रहम दिल हैं ये बड़ा देखने की जरूरत है। और यीशु ने कहा मुबारक है वो जो रहम दिल है, उन पर रहम किया जाएगा। ये बड़ा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में हम खुद मर्सीफुल बन जाएं। और उसके बाद तीसरी बात है, खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। खुदा का वादा जो है वो खुदा पर तवक्कल करने वालों के साथ है। पहला था खुदा का वादा खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों के साथ है। खुदा का वादा रहम करने वालों के साथ है। और तीसरा पॉइंट है, खुदा का वादा खुदा पर तवक्कल करने वालों के साथ है। और बरकत क्या है? उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं। वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। बोले वेख लांगे थे दो, ये जुमला आप अक्सर सुनते हैं, वेख लांगे थे दो। ठीक है, जो खुदावंद पर तवक्कल करता है वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बंदा खुद ही सजा दे लेगा, खुदा उसको सजा देगा। खुदा अपने लोगों के मुखालिफों को शिकस्त देता है और खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है। ये हम कहते हैं मैं वेख लांगा थे, लेकिन ईमानदारों का खुदा उन्हें देख लेता है। ईमानदारों का खुदा ईमानदारों के मुखालिफिन का मुकाबला करता है और उन्हें शिकस्त देता है। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में खुदा के लोगों की सरफराजियां इसी तरह से हम देखते हैं। खुदा के लोगों की बरकतों को कोई इंसान रोक नहीं सकता। गिनती की किताब में बिलाम नबी की मिसाल हमारे सामने है। गिनती की किताब में हमें मुआबी बादशाह का जिक्र मिलता है। जब इस्राएलियों ने पेशकदमी की और आगे बढ़े तो जब वो मुआब के पास पहुंचे, मुआब के मैदानों में यरू के मुकाबले खेमे खड़े कर लिए उन्होंने। यरू को फतह करने वाले थे और मुआब के मैदानों में जाकर उन्होंने यरू के मुकाबले यानी उसके अपोजिट, उसके सामने अपने खेमे खड़े कर दिए। और क्योंकि बनी इस्राएल के आगे कोई कौम खड़ी नहीं रही थी, तो इसी तरह से जब मुआबियों ने देखा तो वो डर गए। उन्होंने कहा ये तो हमें खा जाएंगे, ये चट कर जाएंगे जैसे बैल मैदान के घास को चट कर जाता है। तो उन्होंने सोचा क्या करें। उन्होंने कहा अच्छा एक नबी है उसको बुलाते हैं, वो उन पर लानत करेगा। उन्होंने बिलाम नबी को बुलाने के लिए बादशाह ने लोगों को भेजा और वो बड़े हदिये लेकर गए, क्योंकि उन्होंने वहां से फाल निकलवानी थी और उसको साथ लेकर आना था ताकि वो आकर इन पर लानत करे और ये जो कौम बड़ी आ गई है ये लानत के जरिए से खत्म हो जाए। बिलाम आ गया, पहले तो उसकी गदी के आगे फरिश्ता खड़ा हो गया
आने नहीं दिया, लेकिन फाइनली वो आया, पहुंचा, बलक के पास आया। बलक ने उससे कहा कि तू ये जानता नहीं था कि मैंने तुझे बुलाया और मैं तुझे कितने गिफ्ट्स दे सकता हूँ, तुझे मैं कितना रुतबा दे सकता हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी क्या मजाल कि मैं बोलूँ। गिनती की किताब उसके 22वें बाब में ये वाक़या है, जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूँगा। पहली दफा पहली जो बरकत मिली में, उसमें बलक जो है उसको बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया, यानी बाल देवता के ऊंची जगह पर जहां पर उनके मंदिर थे, और दूर दूर से इसराइलियों को देखा। बिलाम ने कहा कि यहाँ पर मेरे लिए 7 मजबे बनवा दे, 7 बछड़े 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ पर तैयार करके रख। सब कुछ हो गया, कुर्बानी हो गई। लेकिन जब वो खुदा के लोगों पर लानत करने के लिए खड़ा हुआ तो उसने आकर कुछ और कहना शुरू कर दिया। आकर कहता है, बलक ने मुझे आराम से, यानी शाह मुआब ने मशरक के पहाड़ों से बुलवाया कि आ जा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर, आ इस्राएल को फटकार। फिर आगे कहता है, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? परेशान हो गया बलक। उसने कहा, ये तू क्या कर रहा है? मैंने तुझे बुलवाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत कर और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया, जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले मैं उसी बात का ख्याल ना करूं। फिर दोबारा से, फिर बिलाम को दोबारा से उसने कहा कि दोबारा से आ जा। वो उसे दूसरी पहाड़ी पर लगा, जगह बदलने हो सकता है इतने जरा ना, इतने बिलाम कोई लानत वाला काम करेगा। दूसरी जगह चले गए, वहां जाकर फिर दोबारा से कुर्बानियां हो गई। और सौखती कुर्बानियों के बाद फिर दोबारा से बिलाम ने कहना शुरू किया, ए बलक सुन, ए सफूर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है, मैं उसे पलट नहीं सकता। दूसरी दफा फिर उसने बरकत दे दी। फिर तीसरी दफा दोबारा से उसने कहा कि आ जा। भी दोबारा से फिर एक और जगह पर आ जा, एक और जगह, तीसरी जगह पर ले गया। वहां जाकर 24वें बाब में गिनती की किताब दोबारा से कहता है कि इन पर लानत कर। लेकिन दोबारा से बिलाम ने बरकत की बातें कही। दोबारा से बिलाम जो है बरकत देता है। फिर बलक को बिलाम पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, वो अपने हाथ पीटने लगा। उसने बिलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने 3 बार उनको बरकत ही बरकत दी है, सो तो अब अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था तुझे आली मंसब पर मुमताज करूं, पर खुदावंद ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा। तो कहता है, खुदावंद ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा, लेकिन खुदा ने जो वादा किया था वो उसको कैसे छोड़ दे? खुदा ने अपने लोगों के साथ बरकत का वादा किया था, और बिलाम ने खुद ये नबूवत करते हुए कहा कि वो ना वो आदमजाद है कि वो अपना इरादा बदले। खुदा ने अपने लोगों के लिए जो बरकत का वादा किया है, खुदा उससे नहीं फिरता। खुदा उसके मुखालफतों की लानतें उन्हीं पर लौटा देता है, और खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। बिलाम नबी को बुलाया गया कि वो लानत करे। बार बार उसके मुंह से खुदा ने बरकत के अल्फाज निकलवाए, और उसको उसने कहा, बादशाह ने कहा, तेनू खुदा ने बरकत नहीं लेने देती। लेकिन खुदा उन बरकतों को कैसे रोके जो उसने अपने लोगों के साथ की हुई है, वादा किया हुआ है, जो अहद बांधा है, खुदा उसको पूरा करता है। खुदा ने मेरे और आपके साथ बरकत का अहद बांधा है, और खुदा उससे नहीं फिर सकता। खुदा ने हमें अहद का फर्जंद बनाया है। यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने हमें अहद में शामिल किया है। खुदा ने मुझे और आपको अपने बेटे और बेटियां और अपना घराना बनाया है। उस बरकत का अहद जो खुदा ने हमारे साथ बांधा है, उसको कायम रखते हुए खुदा हमें अपने मुखालफों पर सरफराज करता है। बड़े बड़े नबी, बड़े दुआ करने वाले, बड़े बड़े जादूगर भी खुदा के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़े लोग जो जादूगरों के पास जाते हैं, खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाएं, हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। अगर हमें नुकसान पहुंच रहा है, बहुत से लोग कहते हैं साढ़े जादू कराता, साढ़े तवीज कराता, साढ़े तैयार हो गया। हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। उनको इल्जाम देने के बजाय हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम कितने मजबूत हैं। अगर हम यीशु में मजबूत हैं तो फिर यह जादू हमारी बरकतों को रोक नहीं सकते। ये फालगीर, नबूवतें, पेशिन गोइयां,
खुदा के लोगों के खिलाफ, लानतें खुदा के लोगों के खिलाफ काम नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये 3 बातें जिन लोगों के साथ खुदा ने बरकत का वादा किया वो हमारी जिंदगी में हों। पहली है खुदा के हुक्मों को मानना, उसमें मसरूर रहना। दूसरी है रहम दिल बनना। तीसरी है खुदावंद पर तवक्कल करना। इन तीनों के लिए जो बरकत के वादे हैं उनको पूरा करने के लिए हमें खुदावंद पर भरोसा करने की जरूरत। और उसके बाद आखिर में ये ज़बूर में लिखा है कि शरीर देखेंगे और कुड़ेगा। ये वाकया आपको एहसास दिलाएगा। नए अहदनामे में इसकी तस्वीरी झलक लिखा है, जो सादिक है उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, सादक की यादगार हमेशा रहेगी। इसी ज़बूर में सादक की यादगार हमेशा रहेगी। शरीर देखकर कुड़ेगा और दांत पीसेगा और घुलेगा। आप में से किसी को कोई तमसील याद आई है? नए अहदनामे में एक तमसील है इसी हवाले से। मुकद्दस लूका की इंजील 16वां बाब दौलतमंद अमीर आदमी की तमसील, लाजर की। दौलतमंद शख्स है, खाता पीता है, रोजाना शान शौकत के साथ रहता है और दावत करता है, लेकिन लाजर उसके दरवाजे पर पड़ा है। आरज़ूमंद है कि कोई टुकड़े उसकी मेज पर से गिने और वो उनको खा ले। लेकिन एक तरफ दौलतमंद शख्स है, दुनिया में एंजॉय कर रहा है सारी बरकतों को, खुशियों को, ऐश इशरत को, दौलत को। लेकिन बाद में क्या हुआ? मुकद्दस लूका की इंजील और 16वें बाब में डायलॉग हैं उस शख्स के, जो दुनिया में तो उसने बड़ी दौलत ले ली, जो यहाँ बल्कि शरीर कुड़ेगा। यहाँ पर 16वें बाब में हम देखते हैं दौलतमंद शख्स की मिसाल, जब उसने लाजर को देखा कि लाजर जो है वो तो बाप इब्राहिम की गोद में है और वो जो है वो आलमे रवा में अजाब में मुब्तला है। उसने कहा, ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। फर्क देखें कि वहां पर क्या है, ऐशो इशरत और लाजर आरज़ूमंद है। उसने वो भी कभी नहीं दिए थे, यानी उसको टुकड़े भी कभी नहीं मिले थे। उनका भी वो आरज़ूमंद था कि कहीं से मिल जाए, वो कहीं दे दे तो मिल जाए, वो भी नहीं सी देता। देखिए ना, खुद तो बड़ी ऐशो इशरत है तो वो भी नहीं वो दे रहा था, तो वो आरज़ूमंद था। लेकिन वहां पर कहते अपनी उंगली का सिरा भिगोकर, कैसी उसको कमी कैसी है और लाजर को कैसी फरावानी है कि वो तसल्ली पाता है और उसकी यादगार हमेशा कायम है, उसकी सदाकत हमेशा कायम है। और जो इस दुनिया में इस दौलतमंद आदमी की तरह है, जिसने रहम नहीं किया, जिसने खुदा पर तवक्कुल और भरोसा नहीं किया, उसकी तालीम को नहीं माना, उसकी आइंदा हालत क्या है? वो कुड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि जब हम ब्लेसिंग चाहते हैं, हम में से हर एक, मैं भी और आप भी, हम में से हर एक इस दुनिया में बरकतों का तलबगार है। लेकिन हमें यह भी देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी क्या है। हमारी जिंदगी में हमारा किरदार, हमारा कंडक्ट, हमारे काम क्या है? क्या वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है? क्या हमारी तरजीह यीशु है या दुनिया की चीजें? जिनकी तरजीह यीशु है, यीशु ने कहा ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आइए हम दुआ के लिए अपने सब कुछ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने फजल किया और हमें इस काबिल किया कि आज हम इबादत के लिए जमा हो सके। खुदावंद, हम अपनी खामियों का इकरार करते हैं, हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं। खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू और बरकत दे। खुदावंद, हमें तैयार करके हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाए, हम तेरे बेटे यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दे सके, क्योंकि ताकि ना सिर्फ इस दुनिया में, आइंदा जिंदगी में भी आराम पा सकें और हमारे खानदान भी बरकत पा सकें। खुदावंद, तू हमारे साथ हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 458 गाएंगे, 458। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 458, गीत नंबर 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है।
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हमने तेरी हमदो सना की, तेरे कलाम को सुना और अपने दिलों को तेरी हजूरी में खोला, तुझसे मांगा, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा फजल है कि खुदावंद तूने हमें इस काबिल किया कि हम ये सब कुछ कर सकें, सेहत और तंदुरुस्ती दी। खुदावंद इन हदियाजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं। इन्हें कबूल कर और इनके वसीले से तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दिव्य तौर पर बड़ी बरकत दे। हमारी हिफाजत और निगहबानी कर, तेरा हाथ हम सब पर भर जाए, हम महफूज हो जाएं। खुदावंद दुआ करते हैं कोरोना वायरस से
डेंगू से हम सबको महफूज रख। हमारी सारी कलीसिया यीशु के खून की कुदरत में महफूज हो जाए। बीमारियां परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। तू छू और खुदावन बरकत दे और इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा। हमारे कामों में तेरी बरकत हो, हमारे इरादों और मंसूबों में यीशु की गवाही हो। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर साहबान आ जाए मेरी मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहू और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि तुम हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तरह से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वह हम में हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद हम इस होस्तिया के लिए दुआ करते हैं और शीरे के लिए दुआ करते हैं कि तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इनको मुबारक और बरकत दे और खुदावंद इनकी तकदीस कर, ताकि इनको खाने के वसीले से जब हम तेरी ज़ियाफत में शरीक हों तो तेरे बेटे यीशु की मौत का इजहार अपनी ज़िंदगी से कर सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी
और अपने शागिर्दों को देखकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है जो बहुतों के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावन की मेज पर आने की दावत देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं।
कहा मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूं। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदा
जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु ने कहा कि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें।
जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। कादर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अज़ियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अब्दी बादशाही के वारिस भी हैं। ए आसमानी बाप, हम नहायत फरोतनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशकर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूहुल कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुलबाद होती है। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ए खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते और तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ए मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर के खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।